Hi everyone, so welcome to this tutorial session. इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की समरी बताऊंगा. So if you already know all the equations we studied in our class and you understood most of them, so I advise you to skip this tutorial and see the other parts, or you can solve questions by yourselves. So here I'm going to give you a summary of what. तो electrostatic में हमने discuss किया है कि in a conventional problem of electrostatic, our goal, what is our goal? Generally speaking, our goal जो है हमारा वो है find electric field, right? हमने electric field find करनी है given some charge density. So this is the typical problem for electrostatic कि आपके पास सोर्स चार्ज है और या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्जेस हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो फाइंड करें. एंड फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली फ्रॉम कूलम्स लॉ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स. तो क्लास में हमने स्टडी ये किया हुआ है कि बेसिकली so there are three main key variables here. Number one is source charge, let me write it again, rho, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, and then we have electric potential. And in the class we know that कि electric potential का idea हमने इसलिए introduce करवाया था कि हमारी calculations easy हो जाएं, because finding now electric field from a charge, given charge to electric field हम कैसे find कर सकते हैं. तो electric field हम find कर सकते हैं using Coulomb's law, right? Coulomb's law states that कि आप electric field find कर सकते हो and it is equal to 1/4 pi epsilon. आप integration करते हो and that integration is on source charge divided inverse of the distance square और r unit vector है, right? तो डी क्यू रो के साथ किस तरह से कनेक्टेड है वी नो ऑलरेडी. रो जो होती है वो डी क्यू ओवर डी वी है. तो यहाँ पे आप बेसिकली डी क्यू की जगह रो डी वी लिख सकते हो. सो इफ इन प्रॉब्लम सोर्स चार्ज इज गिवन we can actually use Coulomb's law to find electric field. But what is the catch? The catch is यहाँ पे जो r unit vector है वो इंटीग्रेशन के अंदर है. You can see. So now if you see the lecture notes you will come across problem we solved in the class कि इतना easy नहीं होता integrals को solve करना जिसमें vectors हों. तो it's not very simple problem to solve. You can solve in principle with Coulomb's law these problems, but there are actually easier ways to solve it. And we saw that क्या अगर problem में symmetry हो तो आप Gauss's law use कर लो, right? And the other way around is आप ऐसा करें कि पहले electric potential find कर लें and from that electric potential you can find electric field. So first find electric potential from a given source charge. और उसकी इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन ये है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करोगे एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन. वंस अगेन इंटीग्रेशन है चार्ज के ऊपर ओवर दिस टाइम आर, राइट? So this is the equation. If you know the source charge, you can find electric potential. And now if you compare this green equation with this pink one, you see यहाँ पे potential is much more easier to find than the electric field because ये scalar integration है. So we are interested in electric field, तो फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे. तो basically हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ electric potential नहीं find करना चाहते बल्कि we want also find from electric potential to electric field. And once again in our class हमने ये equation derive की थी कि अगर आपके पास potential given हो तो आप उसका potential gradient ले लो, right? Gradient of that potential will give you electric field. So gradient, I will remind you, gradient is what? Gradient is change. So it's a derivative, but उसके साथ ये unit vectors भी आते हैं. So partial by partial x y j
पार्शियल बाय पार्शियल, ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ. सो ग्रेडियंट ये है बेसिकली, राइट. सो ग्रेडियंट गिव्स यू रेट ऑफ चेंज, बट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ये हमें बताता है ग्रेडियंट, राइट. रेट ऑफ चेंज उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज हो रहा था. तो अब अगर प्रॉब्लम में सो फॉर व्हाट वी लर्नड कि सोर्स चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ. अदर वे अराउंड इज इलेक्ट्रिक, आप पहले पोटेंशियल फाइंड कर लें और अब उसका बेसिकली दिस इज डेरिवेटिव, बट direction भी है साथ, तो we call it gradient, which gives you the maximum change. तो in simple terms ये हम डेरिवेटिव लेंगे पोटेंशियल का तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अब हम उलट चलते हैं. सो इज देयर अ वे टू फाइंड, फॉर एग्जांपल, इज देयर अ वे टू फाइंड charge if we know the field. So consider a situation where we are interested in finding charge given that we know electric field. For example, अगर हमारे पास 2 plates हैं capacitors की and I know somehow कि इन दोनों के बीच में electric field कितनी है. Can I find these charges using the information of electric field? The answer is yes. वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ. और गॉसेस लॉ की मैं स्टेटमेंट आपको याद करवा देता हूँ. वो थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये फ्लक्स है, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू अ सरफेस, और वो सरफेस क्लोज होनी चाहिए, इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और फिर हमने इसको यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखा था, डेल डॉट ई की फॉर्म में. तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन, राइट. सो दिस इज गॉसेस लॉ. तो अगर हमें ई पता हो और उसका मैं डाइवर्जेंस लूँ तो मुझे सोर्स चार्ज पता चल जाएगा. सो इफ आई नो ई आई कैन फाइंड सोर्स चार्ज बाय टेकिंग इट्स डाइवर्जेंस. तो ये सोर्स चार्ज के इक्वल होगी, सिर्फ उसको मुझे एप्सिलॉन से डिवाइड करना है, राइट. सो समरी, सो दिस इज कूलम्स लॉ. फ्रॉम चार्ज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम चार्ज टू पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज़ करनी है. फील्ड से अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो आई विल यूज़ गॉसेस लॉ और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करूँगा. एंड द अदर प्रॉब्लम इज़ फॉलोइंग कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड टिपिकली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट लेट्स से सपोज फॉर सम रीजंस हमें ये करना है, राइट. देन हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई कैलकुलेट पोटेंशियल from electric field. So this can be found actually by writing the equation of potential. तो अगर आपको याद हो पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो डिफाइन किया वो माइनस है इंटीग्रेशन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, लेट्स कॉल दैट पॉइंट O, टू R E डॉट डी एल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने क्लास में की है. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आई विल इंटीग्रेट इट बाय टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट अलोंग द पाथ वी मूव. तो मुझे पोटेंशियल पता चल जाएगा. एंड फाइनली अगर जो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे पोटेंशियल से for somehow charge find करना है तो is there a way to do it? Yes, in the class we studied there is a way to do it. तो potential से अगर मुझे charge find करना है, so what's the way to do it? So I know Gauss's law in its differential form is rho over epsilon. Okay, then I also know कि E जो है वो माइनस डेल वी होती है. बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलेट रो विथ V, तो यहाँ पे रो लिखा हुआ है, यहाँ पे V है. सो आई हैव टू इक्वेशंस
where रो एंड वी आर इन्वॉल्व, तो somehow मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो फिर मैं इस ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, डेल डॉट माइनस डेल वी is equal to rho over epsilon, or by using vector identities I can write this del square v, del dot v और del square v लिखेंगे, और ये इक्वल होगा माइनस साइन में राइट साइड पे ले आता हूँ रो ओवर एप्सिलॉन, एंड दिस इक्वेशन एक्चुअली हैज़ अ स्पेशल नेम। तो इस केस में इफ़ यू सी कि अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो उसका मैं डेल स्क्वायर उस पर अप्लाई करूँगा, विच इज़ डेल डॉट डेल, तो मेरे पास रो आ जाएगा। एंड इन दिस chapter we will not study in detail this equation, but this equation is called Poisson equation। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, we will discuss in detail next time in the next chapter। so पोटेंशियल से रो हमारा सो इट्स नॉट आवर कंसर्न एट दिस पॉइंट कि कैसे फाइंड करना है, बट एनीवे यू नो दिस इक्वेशन। और अगर इसकी साइड, अगर मैं इसकी ज़ीरो कर दूं राइट हैंड साइड, फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो सोर्स चार्ज, अगर ये ज़ीरो हो देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। सो अ क्विक समरी, प्रॉब्लम में अगर सोर्स चार्ज गिवन है, फील्ड फाइंड करनी है, यू कैन यूज कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ, both you can do it, right? The second way is using, I will write the other one, electric flux through a closed surface is equal to charge enclosed over epsilon. You can use Coulomb's law or Gauss's law, or the other way around is go find potential and through potential you can find electric field। ठीक है, चार्ज से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक आना है। अब उल्टा चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज़ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड से सोर्स चार्ज फाइंड करना है तो गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ कर लो। अब कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी है, द आइडिया इज हियर इज यूज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ व्हेन देयर इज नो सिमेट्री इन द प्रॉब्लम, राइट? तो टिपिकली हम तब यूज़ करते हैं because it works actually it works well for symmetrical problems, but for symmetrical problems actually there is more easier way to calculate it। वो Gauss's law है। तो Gauss's law आप जब प्रॉब्लम में सिमेट्री हो तब यूज़ करें, और सिमेट्री हमने स्टडी की है, तीन टाइप्स की होंगी, प्लेनर, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। कूलम्स लॉ जब सिमेट्री नहीं है, और इन जनरल इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि आप पोटेंशियल से मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, राइट? तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं ये करने जा रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कपल ऑफ देम मे बी टू ईच अप्रोच, कूलम्स लॉ के दो क्वेश्चन कवर कर देता हूँ, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर गॉसेस लॉ से एक दो क्वेश्चंस आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। तो एक ट्यूटोरियल में कूलम्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं, एक में गॉस कर लेते हैं, एंड देन लेट्स स्पेसिफाई वन ट्यूटोरियल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कर लेंगे, और मे बी आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन और सो कि जिसमें हमने सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो देयर विल बी लाइक 4 पार्ट्स, ईच मे बी कंटेनिंग 2 क्वेश्चंस, राइट? सो वो मैं कवर कर देता हूँ। तो यू कैन सी द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल अगले जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो जिस पार्ट में कन्फ्यूजन है यू कैन वॉच दोज, एंड एज यूजुअल डोंट हेजिटेट to reach me with your questions। Thank you।